Hello students and welcome. So we will now study SS of class 8th, and in the previous classes of SS we were studying civics of lesson 1 of civics, that is about the constitution and the need for laws. So in the previous classes we have understood the important terms given in our constitution. Now in today's class we will proceed further and we'll study about what are laws. So what are laws? मतलब कानून क्या होते हैं? Those concepts or rules which remain definite and unchanged are called laws. The term law is used in different senses. Usually people discuss about divine law to express their faith in divine power. The other law is the physical law based on the cause and effect relationship, and it is unchangeable. The third kind of law is man-made law. Man-made laws or human laws may be ethical, social or political. तो वो कॉन्सेप्ट्स या वो नियम जिनके जो निश्चित रहते हैं और जिनको जल्द चेंज नहीं किया जाता है उनको हम कहते हैं कानून. ये जो शब्द लॉ है इसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं. ज़्यादातर जो जनता होती है वो दैविक कानूनों के बारे में अपनी विश्वास प्रकट करती है, क्योंकि और ये प्रकट करती है कि उन्हें जो है दैविक शक्ति पे यकीन है. जो दूसरे प्रकार के कानून होते हैं वो होते हैं भौतिक नियम, भौतिक कानून, जो कि बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे और ये अनचेंजेबल होते हैं. जो तीसरे टाइप का कानून होता है वो होता है मैन मेड लॉ, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया कानून. तो ये मैन मेड लॉ जो होते हैं वो या ह्यूमन लॉज होते हैं, ये एथिकल, सोशल या पॉलिटिकल हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हेनरी सिडविक, लॉज आर जनरल डायरेक्शन so as to the conduct of the community. For disobedience to which a penalty of some kind will normally be inflicted by the authority of the government. तो हेनरी सिडविक के अकॉर्डिंग जो कानून होते हैं वो सामान्य निर्देश होते हैं जो कि किसी कम्युनिटी द्वारा पालन करने चाहिए, और अगर इनमें कोई डिसोबीडियंस होती है तो किसी तरह का कोई दंड भी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाना चाहिए. टी हॉलैंड डिफाइंस अ लॉ एज ए जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस एनफोर्स्ड बाय ए सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी. टी हॉलैंड कानून को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा जनरल रूल होता है इंसानी क्रियाकलापों का जो कि एक स्वायत्त राजनीतिक अथॉरिटी द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, यानी लागू किया जाता है. सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉज, कुछ जो नियम विशेषताएं हैं, गुण हैं. लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डू थिंग्स सिस्टमैटिकली. लॉ रेगुलेट द एक्सटर्नल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय डिटर्मिनेट human authority. State is a sovereign political organization. No rule can take the form of law until it is approved by the state. तो कानून वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो साधन होते हैं जिनके द्वारा कोई सी भी चीज़ को एक सिस्टम से किया जाता है. कानून किसी की भी बाहरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं. लॉ को कोई ह्यूमन अथॉरिटी ही लागू कर सकती है, और जो राज्य होता है, राज्य वो स्वायत्त राजनीतिक संगठन होता है जो कि जिसकी बिना मर्जी के कोई भी रूल, कोई भी नियम कानून नहीं बन सकता. तो नीड फॉर लॉज. No civilized society can be peaceful unless its people abide by the rules and regulations. In fact, laws regularize the civic life of the community. Laws are important for the smooth running of the society and for establishing peace and order in the state. Customs adopted by society when followed regularly take a concrete form and become law.
In past, certain principles were found to be useful and were applied regularly, thus they were recognized as law. These customs cannot be ignored by the state, but if there are any social and religious customs like child marriages, infanticide, sati system, and practice of dowry that hamper its progress and that of the country, they must be removed at the least, otherwise they will destroy social structure and hinder national progress. Dowry is banned and punishable in India by the Dowry Prohibition Act of 1962. Deep-rooted evils cannot be removed all at once, but continuous efforts and more stringent laws help to reform the society. तो कानूनों की ज़रूरत, कोई भी सभ्य समाज जो होता है वो उसमें तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक कि उसके लोग जो है नियम कानूनों से नहीं बंधे। इनफैक्ट जो कानून होते हैं वो आपकी जो नागरिक जीवन होता है उसको रेगुलेट करते हैं और ये किसी भी समाज के स्मूथ रनिंग के लिए और शांति के स्थापना के लिए, साथ ही राज्य में व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जो रीति रिवाज होते हैं सोसाइटी में, जो सदियों चलते आ रहे होते हैं, लोगों की मान्यताएं होती हैं, वो एक टाइम आके एक ठोस रूप ले लेती हैं और कानून बन जाती हैं। पास्ट में भी हमने देखा कि कई सारे ऐसे सिद्धांत थे जो कि बहुत यूज़फुल थे और जिनको बाद में अप्लाई किया गया तो वो बाद में कानून के रूप में पहचाने गए। इनका ऐसे कस्टम्स को, रिवाजों को कोई भी स्टेट इग्नोर नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई ऐसे धार्मिक रिवाज हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गए, बाल विवाह, इन्फेंटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, सती प्रथा या फिर दहेज प्रथा, अगर ऐसे कुछ रिवाज हैं जिनसे समाज और देश की तरक्की पे असर पड़ रहा है तो उनको तुरंत की तुरंत ही हटा देना चाहिए, अदरवाइज वो समाज को नष्ट कर देते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। दहेज को हमारे यहाँ बैन किया जा चुका है और साथ ही साथ ये पनिशेबल भी है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1962 के तहत। हालांकि जो ये सामाजिक बुराइयां हैं जो कि बहुत गहरे से अपनी जड़ें जमा चुकी हैं, इनको एक साथ नहीं हटाया जा सकता, लेकिन निरंतर प्रयास से हमारे समाज को सुधार लाया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज देयर रिलेशंस, संविधान और कानून और उनके संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। इन प्री डेमोक्रेसी डेज द कमांड एंड ऑर्डर ऑफ द रूलर वॉज रिगार्डेड एज अ लॉ। In the present world, in a democracy, elected legislatures make laws for the good of the common people, but in a democracy too, sometimes certain laws are not approved by all, while some laws might appear unjust from individual point of view. Law must be obeyed and people should abide by it. However, this does not mean that law should not be opposed because our personal interest is not involved. If a person feels that a law is harmful to the society, he must oppose it. तो प्रजातंत्र के पहले के दिनों में जो शासक हुआ करता था उसके ही दिशा निर्देशों को कानून समझा जाता था, लेकिन आज की दुनिया में प्रजातंत्र में जो चुनी हुई विधायिका होती है वो कानूनों को बनाती है और वो कानून कुछ इस प्रकार बनाए जाते हैं जिससे आम जनता का भला हो। लेकिन प्रजातंत्र में भी कभी कभी कुछ कानूनों को कुछ लोग नहीं स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ कानून जो है किसी इंडिविजुअल की नज़रिए से देखा जाए तो उसके साथ अन्याय कर रहे होते हैं। हालांकि कानूनों को सभी के द्वारा ओबे किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानूनों का कभी विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी का जो पर्सनल इंटरेस्ट है, मतलब व्यक्तिगत हित है, वो जो है उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कानून समाज के लिए हानिकारक है तो उसका अपोज किया जाना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कानून जो समाज के लिए भी हानिकारक हो हम लोग उसके खिलाफ भी टिके रहें, हमें उसका अपोज करना चाहिए अगर समाज को उससे नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे प्रजातंत्र में हमें ये ताकत मिलती है। अब लॉज एंड डिसेंट, कानून और जो मतभेद होते हैं
Mostly laws are good because they have been framed for the welfare of the people, but there are bad laws as well. People oppose all such bad laws, so there is always a spirit of dissent underlying a bad law along with the spirit of acceptance in case of a good law. तो ज़्यादातर जो कानून होते हैं वो लोगों के भले के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कानून भी होते हैं जो कि समाज के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो जनता ऐसे कानूनों का विरोध किया करती है। तो हमेशा ही एक इस तरह के विरोधों के चांसेस रहते हैं, जिन विरोध होते रहते हैं कुछ बुरे कानूनों के प्रति, और ये इसलिए होते हैं ताकि उसकी जगह कुछ अच्छे कानून लाए जाएं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल न्यूमरस अनजस्ट लॉज वर पास्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल द वर्नाकुलर एक्ट 1978 tried to put restrictions on vernacular newspaper. In 1905 the partition of Bengal was effected. In 1930 the unjust salt law was opposed. Gandhiji launched the satyagraha against it. Through Dandi March he violated the salt law. At his call people began to defy laws and order of the government. There were strikes and demonstrations all over the country. The people boycotted foreign goods and refused to pay taxes. Soon this movement gained strength. The government followed a repressive policy to put it down, but these repressive measures failed to crush the spirits of Indians. तो ब्रिटिश शासन के दौरान कई सारे ऐसे कानून आए थे जो कि लोगों के साथ अन्याय करते थे। ऐसे ही एक कानून आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978, इसमें दिया हुआ है, हालांकि ये जो साल दिया हुआ है ये गलत है, 1978 नहीं यहाँ होना चाहिए। तो उस एक्ट ने यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पे। 1978 की जगह 1878 कर लीजिएगा। फिर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, फिर 1930 में एक नमक के बनाने के खिलाफ कानून आया था जिसका गांधी जी ने अपोज किया और उसके खिलाफ सत्याग्रह चलाया, और दांडी मार्च करके, दांडी यात्रा करके उन्होंने नमक के कानून को तोड़ा। गांधी जी के एक बुलावे पे लोगों ने कानूनों को तोड़ा और जनता के व्यवस्था को भंग कर दिया, और देश में जगह जगह पे हड़ताल और डिमॉन्स्ट्रेशन होते रहे। लोगों ने विदेशी सामानों का बायकॉट किया और कोई भी टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स देने से मना कर दिया। तो जल्दी ये जो आंदोलन था वो बहुत ताकतवर हो गए। तो जो सरकार थी उस टाइम की, उसको जो है इस आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीतियों का पालन करना पड़ा। लेकिन इन दमनकारी नीतियों से भी जो लोग भारतीयों के अंदर की इच्छा को दबा नहीं पाए। In fact, dissent is an indispensable part of democracy. People have the right to have independent opinions which they express through their representatives. That is why there exist many opposition parties in every democratic country. Dissent is the right of every democratic party. Another example of dissent is the anti-liquor agitation. Many a times the government tries to pass certain laws which are not good from ethical point of view. Liquor law is one of them. The government justifies its policy on the ground that such a policy would reduce the distilling of illegal liquor, which causes many deaths at times. But the opposition parties vehemently opposes such actions. They also take out processions, hold meetings, and even resort to satyagraha to condemn the government. Thus, dissent is an important feature of the democracy. तो ये जो डिसेंट होता है वो प्रजातंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जिससे लोगों के पास खुद के एक स्वतंत्र ओपिनियन होते हैं, स्वतंत्र विचार होते हैं, जो कि वो अपने प्रतिनिधियों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं। इसीलिए किसी भी प्रजातांत्रिक देश में बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। और ये डिसेंट का एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि एंटी लिक्वर एगिटेशन, मतलब कि ये जो मदिरा या शराब वगैरह होती है इनके विरोध में जो आंदोलन चला था
चलते रहते हैं। कई बार सरकार ऐसे कानूनों को पास करती है जो कि समाज की दृष्टि से सही नहीं होते हैं। इन्हीं में से एक होता है शराब या मदिरा का कानून। हालांकि गवर्नमेंट जो होती है ये अपने इस नीति को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि अगर हम शराब नहीं बनाएंगे तो लोग अपने घरों में ऐसी शराब बनाएंगे जो जहरीली होगी और जिससे उनकी मौत हो सकती है। इसीलिए सरकार जो है शराब बेचने की इजाज़त दे देती है, लेकिन उस शराब बेचने पे भी सरकार का कंट्रोल रहता है कि शराब की मात्रा वगैरह हर चीज़ पे, जिससे कि लोगों की सेहत पे ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़े। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो ऐसे किसी भी एक्शन का क्रियाकलापों का विरोध करती हैं। वो हड़ताल करती हैं, रैली निकालती हैं, सत्याग्रह करती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो विरोध प्रदर्शन होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर होता है। रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। By now we know that our constitution provides the framework for administering the country. A law which is against the fundamental right of the people can be declared null and void by the Supreme Court. Thus the rule of law will always prevail. The rule of law implies that no one is above the law. This not only regulates the power of the government but also stresses that everyone is equal before the law. Thus we can say that democracy and the rule of law complement each other. तो कानून का शासन और प्रजातंत्र से हम ये समझते हैं कि हमारे संविधान में एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिससे कि देश के प्रशासन को चलाया जाता है और ऐसा कोई भी कानून जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो उसको हटाया जा सकता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसीलिए कानून का शासन हमारे यहाँ चलता है। और कानून के शासन का मतलब ये है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये सरकार की पावर को भी कंट्रोल में रखता है और साथ ही साथ ये भी ध्यान देता है कि सबके सब कानून के सामने एक समान रहें। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कानून का शासन होता है और प्रजातंत्र होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज योर लेसन फर्स्ट ऑफ सिविक्स। पढ़िएगा और इसकी एक्सरसाइजेस को करिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।